So, hi guys, uh, I'm Arpit Gupta. I'm a business analyst in Swiggy. So, I'm here to just to give you guidance. What is the business analytics and what is the data analytics field? So, it is not kind of a hard coding runs such as software developer or software engineer. So, from any background, you can jump here and do some analysis there. So, in your term, so what is the analytics? So basically, if you are deep diving into data and getting some insights, like you are getting some insights from the data, आप कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हो फ्रॉम द डेटा एंड yeah, please. Okay, thank you so much, Manisha. So yeah, so I was talking about the analytics. So basically, what is the analytics? You have to deep dive into the data. Like if you are purchasing something from the KFC or any marketing site. Cool, Manisha. You can just write down here that I'm audible and visible, so I'll connect over that. Okay. So I was telling you. So what is the analytics by the data term? So अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो बेसिकली फ्रॉम KFC और एनी मॉल, अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो तो सो बेसिकली आप शॉपिंग करते हो तो उस चीज़ों की एक डेटा जनरेट होता है उस उनके डेटा वेयर हाउस सिस्टम में. सो बेसिकली उस डेटा को हम बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट एनालाइज करते हैं. बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द कस्टमर बिहेवियर, और उस कस्टमर बिहेवियर के बेसिस पर हम कूपन्स लॉन्च करते हैं, कैंपेन्स लॉन्च करते हैं. लाइक आप अगर स्विगी का ऐप इंस्टॉल किया होगा तो आपको बेसिकली डेली पुश नोटिफिकेशन आते होंगे बेसिस ऑन लाइक टुडे इज द मदर्स डे एंड यू मस्ट हैव गॉट अ and push notification or SMS from some companies like today is the mother's day, buy something from us and all. So these are the customer retention strategies. So basis on the data we have to do some new user acquisition. Like हम न्यू यूजर्स को गेन करते हैं, रिपीट यूजर्स को अगेन परचेज करने के लिए प्रमोट करते हैं. So these are the mainly focus of the analytics. So analytics can be divided into the multiple parts. Like we have to do marketing analytics. So in the marketing analytics we do like campaigns and all. uh, एंड जज द कैंपेन्स. बेसिकली एक नया कूपन लॉन्च करते हैं और उसको जज करते हैं हाउ द कस्टमर आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कूपन. लाइक in any brand, if you are getting a free delivery, like in the Domino's you are getting a free delivery, so how you are responding to that particular coupon for the free delivery, that we analyze under the marketing analytics. On the operations and analytics we generally judge what is the delivery time, and what is basically how we can optimize the delivery time. Like if you order something from the Flipkart, so यू वांट, आप चाहते हो कि ऑर्डर बेसिकली आपके पास मिनिमम टाइम में पहुंचे. सो वी मेक श्योर कि जो ऑर्डर आपने किया है वो आपके पास वेयर हाउस इजिली अवेलेबल हो. फ्रॉम दैट यू कैन गेट द ऑर्डर इजिली इन द शॉर्टेस्ट टाइम. So these are the things we have to analyze. Like from the Swiggy perspective we have to maintain the orders. From the restaurant side also, like we have to maintain the restaurant, we have to maintain the delivery executive, we have to maintain customer side also. So these are the terms we have to maintain. So let's jump on these slides. So these were the things I was telling about the analytics. So we have to get the information from the data. So data is basically key term for us. We can't do anything without the data. So basically in the past time we don't have much data, but आज के time में we are generating trillion GBs of data each time. Like the Facebook, every app you are scrolling, like if you are surfing in the Google, so from each click, from each view of you data is being generated, that is being utilized from the data analytics or the data science team. And you get notification from that. Like अगर आपने फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च किया है तो उनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर लेगा आपकी प्रेफरेंस. इफ यू हैव सर्च सम काइंड ऑफ ट्राउजर्स, so basically you will get notification or ads in Google corresponding to that trousers. So these are the terms basically used. एंड बेसिस आपके बिहेवियर के बेसिस पर वो आपके पेजेस को भी ऑप्टिमाइज कर देंगे. लाइक इन द फ्लिपकार्ट
you will get only those things that you have searched before or you have preference for that. So these are the things being done by the analytics. And these analytics term driven basically ये हमें न्यू यूजर को रिटेन करने के लिए, और बेसिकली एक यूजर है जो हमारे पास बहुत पहले आया था बट अभी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, दैट यूजर इज कॉल्ड द डोमेंट यूजर। सो हम उसको कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पर कैसे ला सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज ड्राइव करने के लिए ये डेटा यूज किया जाता है। और बेसिकली दीज टर्म्स फॉल अंडर द एनालिटिक्स। ओके, next thing, so how you guys what is the requirement for these things and how you guys can start in these things. So basic requirement, if you are good enough in the math and statics, like everybody has started in maths in their graduation or before that, so if you are good in maths, so you can jump into the analytics part and without any prior knowledge to the coding or things, because coding and all things that you can learn in the meantime. But अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एंड ऑल्सो यू हैव कॉन्फिडेंस लाइक कि आप वो मैथ लेवल गेन कर सकते हो, so you can jump into the analytics, because playing with the data require maths and statics. And being in the analytics side, you must have you must have to get very good strong into the maths. So the knowledge basically you have to get here about the math and all. So before jumping into the analytics, you must get a good grasp into the statics also. Like statics का meaning मेरे sense में ये है कि you must have heard about some terms in like average and frequency tables into the 12th standard also, like average, stand, mod, median. These things you must have known before jumping into this field. So these are the basic requirements, and by acquiring these skills you can jump into this field. Okay, so how the data analytics is how the data analytics is different. So there are multiple jobs into the IT sector, like the software engineer, software developer, that are highest paying job in the IT sector. But we are different, like we are not the hard coding kind of job. So so in the software engineer you have to learn multiple skills, multiple coding language that will help you to attain some kind of grasp into that field. But business analyst में ऐसा है कि you must have a minimal knowledge of the coding, but you have eagerness to learn. Basically you अगर आप जानना चाहते हो कोई चीज को और लर्न करना चाहते हो, so you will jump into that field and you will get command very easily. you आपको बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लाइक यू कैन वर्क इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर, यू कैन वर्क इनटू द फाइनेंस सेक्टर, फूड इंडस्ट्री में यू कैन वर्क इनटू द एप्पल इंडस्ट्री, लाइक पेंटालून्स के साथ काम कर सकते हो, ई कॉमर्स में लाइक फ्लिपकार्ट एंड मीशो के साथ काम कर सकते हो, एजुकेटर इंडस्ट्री में आप किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस एनालिस्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल, एंड यू कैन वर्क विद देम. It is most prominent job in the IT sector, and very easy to learn these skills and improve in this field. Okay, so what are the four pillars of the business analyst? Though, so the first one is the Excel. You guys must have heard about the Microsoft Excel, and most of you have used that also. So Excel is the basic requirement here, because working with data you have must have knowledge about the Excel, what are the shortcuts are being used, what are the things that are required into the Excel. Second thing is the SQL. So that is the basically structured query language. So that is the easiest language used into the business analysis. For that you have to learn like you have to code that, because in the SQL what we do, आप एक वेयर हाउस समझिए, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है. फ्रॉम दैट वेयर हाउस हम डेटा को फेच करते हैं टू यूज इनटू द एक्सेल, बिकॉज एक्सेल की एक लिमिट होती है कि हम इतना डेटा यूज कर सकते हैं, उससे डेटा यूज करने के बाद वो हैंग हो जाता है. सो SQL एक ऐसा डेटाबेस है, वहां पर करोर्स और मल्टीपल times of the crores data can be stored, or that data can be utilized.
एंड सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज होती हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, आर हो गया। सो अलग अलग कंपनी के वर्टिकल्स में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है बेसिस ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो सेकेंड थिंग इज द विजुअलाइजेशन। सो एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, ये सब आपको बेसिकली टेबल स्ट्रक्चर का डेटा देते हैं। सो आपको उनको विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज एक डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट को डेटा की नॉलेज होती है, बट वो अपने बिजनेस स्टेक होल्डर्स जिनको भी डेटा पास ऑन करता है, दे डोंट नो मच अबाउट द डेटा। सो यू हैव टू प्रिपेयर चार्ट, लाइक आप एक चार्ट है कि डे वाइज डेज आप सेल्स का एक लाइन चार्ट बनाते हो, तो आपको पता चलता है कि किस दिन सेल्स में स्पाइक हुआ है, किस दिन सेल्स में लॉस हुआ है। सो आपके बिजनेस स्टेक होल्डर्स को ये पता चल जाएगा कि ये रीजन्स की वजह से सेल्स में हाइक और ड्रॉप हुआ है। दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टूल, विजुअलाइजेशन। और उसके लिए बेसिकली दो मोस्ट प्रोमिनेंट टूल्स है दैट वी आर यूजिंग। फर्स्ट वन इज टैब्ल्यू एंड सेकेंड वन इज द पावर बी आई। सो ये टूल की नॉलेज आपको गेन करनी होगी फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस। यू कैन कनेक्ट SQL विद द पावर बी आई एंड जनरेट डैशबोर्ड इनटू। सो डैशबोर्ड बेसिकली ये होता है कि ये बहुत सारे चार्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको डेली, मंथली और वीकली लेवल पर डेटा का एक विजुअलाइजेशन देता है कि आप ऑन द पेस रहें कि कंपनी में क्या जा रहा है। थर्ड थिंग है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सो आप अगर एक कंपनी में जंप कर रहे हो, लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट में जंप कर रहे हो, तो आपको उसका बिजनेस का मॉडल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लाइक हाउ द फ्लिपकार्ट इज वर्किंग, व्हाट इज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। लाइक किसी कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना, किसी कंपनी का, लाइक अगर आप जोमेटो को क्लिक करेंगे, जोमेटो का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि न्यू यूजर्स को गेन करना। सो दैट्स वाई वो कंपनी अभी लॉस में चल रही है। सो हर कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। बेसिस ऑन दैट कुछ उनके बिजनेस केपीआई डिसाइड किए जाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज डिसाइड किए जाते हैं कि व्हाट इज अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एंड बेसिस ऑन दैट व्हाट डिसीजन कैन बी मेक। Fourth and one of the most important thing is statics. So you had to get a good grasp into the statics, like uh, आपको कोई चीज, आपके पास ढेर सारा डेटा है बट आपको किसी चीज से कंपेयर करना होगा। सो आपको रोज 2000 की सेल्स हो रही है। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सेल्स ज्यादा है या कम है, तो आपको किसी से कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए आप प्रीवियस डे से कंपेयर कर सकते हो, लाइक आज ट्यूसडे है तो कल आप मंडे से कंपेयर कर सकते हो, या प्रीवियस वीक ट्यूसडे से भी कंपेयर कर सकते हो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अभी तक का जितना सेल्स हुआ है उसका एवरेज के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो स्टैटिक्स हमें बेसिकली ये डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल होता है कि व्हाट आर द डिसीजंस वी हैव टू मेक। This thing basically, this is our primary objective here. What is the difference between the data analyst and the business analyst? So just a minute. Okay. So I'll go one by one. What is the data analyst and what is the business analyst visualization? So you guys must be seeing two different tabs for the data analyst and the business analyst. So basically, data analyst is the one who is the working with the data, generating insights and the patterns from the data, basis on the requirement, basically what the business requires. So basis on that, if you are generating some insights from the data, so you will be called data analyst. And if a data analyst is working with the business stakeholders, basically judging all the, like what is happening in the business, what will be the फ्यूचर में हमारे बिजनेस के साथ क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, अगर बिजनेस का फैक्टर भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं डेटा एनालिस्ट के साथ, तो दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट की फंडामेंटल जॉब क्या होती है कि वो डेटा के साथ स्टोरीज बताता है कि अभी रेन हुआ, रेन की वजह से हमारा अगर आप एक अम्ब्रेला कंपनी में काम कर रहे हो और रेन का सीजन आ रहा है, तो बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट आपको ये बताएगा कि प्रीवियस में हमारा रेनी सीजन में ये सेल्स जो था, बहुत छतों का सेल्स बेसिकली इंक्रीज हुआ था। एंड बिजनेस एनालिस्ट आपको ये बताएगा कि सेल्स इंक्रीज तो हुआ था, अब हमें ऐसे क्या डिसीजंस लेना चाहिए कि सेल्स हमारा अभी और भी इंक्रीज हो जाए। लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों को होम टू होम डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं अम्ब्रेलास की। सेकेंड थिंग व्हाट वी कैन डू कि हम अपना वेयर हाउस पास में ही बना सकते हैं, सच फॉर सच एरियाज, लाइक इन द इंडिया हमारे पास डिफरेंट एरियाज में
अलग अलग टाइम पर रेनी सीजन होता है, तो हम वहाँ पर अपने वेयर हाउस क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंटरी वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट हो। सो हम लोग डिमांड और सप्लाई का एक बैलेंस बना सकें और प्रॉफिट गेन्स कर सकें। सो जो डेटा एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बेसिकली, वो डेटा सिस्टम को मेंटेन करता है, वो डेटा सिस्टम को मेंटेन करता है, और जो भी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं डेटा के साथ वो मैनेज करता है, डेटा की माइनिंग करता है, क्लीनिंग करता है, सो दैट कि वो एनालिसिस के लिए यूज हो सके। डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाता है कि वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यूज कर सकें। लाइक आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है कि एक कैंपेन किया था। कैंपेन का मीनिंग ये होता है जो भी आपको एसएमएस नोटिफिकेशन आते हैं तो बेसिकली उनका एक कॉस्ट होता है। अगर वो कॉस्ट मेंटेन हो जाता है यूजर सेल करने से, लाइक एक कैंपेन में 100 रुपए का कॉस्ट हुआ और उससे जो यूजर्स ने चीजें खरीदी वो 121 की खरीदी, सो 21 का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग एक डेटा एनालिस्ट होता है वो उसकी कैंपेन की सक्सेस मेजर करता है बेसिस ऑन द प्रॉफिट, कि इफ अ कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट और नॉट। ऑन द सेम साइड व्हाट बिजनेस एनालिस्ट डू, बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस को इवेल्युएट करता है ना कि डेटा को। ये इतना टेक्निकल नहीं है, डेटा एनालिस्ट इज मोर ऑन द टेक्निकल साइड, उसे डेटा की टेक्निकल साइड की नॉलेज होनी चाहिए। बट बिजनेस एनालिस्ट को लेस टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और उसको बिजनेस की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए बेसिकली, कि वो बिजनेस डिसीजन में हेल्प कर पाए। और जो भी प्राइमरी स्किल्स हैं बिजनेस एनालिस्ट की बेसिकली वो है क्रिटिकल थिंकिंग, लाइक यू हैव टू थिंक इन ऑल द वर्टिकल्स, what a business demand, how a business can grow, what are the things that are drowning the business,